Hello dear students, I have already taught you all the four forms of present tense and past tense. Now I am going to teach you the future tense. My dear students, like present tense and past tense, future tense has also got four forms. One by one, we will come to know about them. In this video, I am going to teach you the first form of the future tense, which is called simple future or future indefinite. But before I begin teaching you, I would like to remind you once again that if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon so that notification may promptly reach to you whenever I upload new videos. You must also share this video among your friends so that they may also be gainer. I hope you will come to my expectation. Let's begin the video now. So let's start the study of future tense. This is lesson 1 and it is about simple future tense. It is also called future indefinite tense. My dear students, simple future tense or future indefinite tense is the first form of future tense. Simple future tense or future indefinite tense is of two types. The first one is that which refers to uncertain action or uncertain future, and the second one is that which refers to certain action or certain future. I will talk about both these types in this video. Please be with me. First of all, let me talk about simple future tense or future indefinite tense, which refers to uncertain future. Now, first come to know about the type of the Hindi sentences the simple future of uncertain type refers to. Here are four Hindi sentences. Please read one by one. The first one is, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, वह तुम्हें नहीं बुलाएगी. क्या आज पुजारी मंदिर में घंटी नहीं बजाएगा? श्याम यहाँ दोबारा कभी क्यों नहीं आएगा? After reading all these four sentences, the first thing you come to know is sentence 1 is of positive type, sentence second is of negative type, and the third sentence is of simple interrogative type, and the fourth one is of double interrogative type. The second important point to note here is that all these Hindi sentences have root verbs पढ़ना, बुलाना, बजाना और आना. These are the root verbs of Hindi, like पढ़ूंगा, बुलाएगी, बजाएगा और आएगा. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप नोट करते हैं वह यह कि हिंदी क्रियाओं के अंत में गा, गी या गे लगा हुआ है, जैसे पढ़ूंगा, बुलाएगी, बजाएगा, आएगा. यू कैन क्लियरली रीड हियर, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, द रूट वर्ब एंड्स इन गा. वह तुम्हें नहीं बुलाएगी, द रूट वर्ब बुलाना एंड्स इन गी. Similarly, in sentence 3, the root verb bajana ends in ga, and in sentence 4, the root verb ana ends in ga. Okay, and तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यह नोट करते हैं कि
इन सारे सेंटेंसों में जिन कामों के होने के बारे में कहा जा रहा है उसका होना या न होने की संभावना आने वाले समय पर निर्भर है। अर्थात कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि सेंटेंस में जिन क्रियाओं के बारे में या जिन एक्शन के होने के बारे में कहा जा रहा है वह होगा ही, यह हम विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते। जैसे कि पहले सेंटेंस में पुस्तक खरीदने के बारे में बात की जा रही है, लेकिन पुस्तक का खरीदा जाना आने वाले समय पर निर्भर है ना। इसी अब इतने चीज को की जानकारी ले लेने के बाद ठीक है, हम यह बड़े आराम से कह सकते हैं कि द हिंदी सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टॉक अबाउट द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और वर्क इन डेज टू कम, कि जो सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं उनमें घटनाओं के होने या न होने के बारे में जो बात की जाती है वह आने वाले समय पर निर्भर रहता है। और फिर आप यह भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि द हिंदी रूट वर्ब्स फॉलोज वर्ब प्लस गा गे गी पैटर्न। जैसे कि वहाँ था कि मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, रूट वर्ब क्या है इसका, रूट वर्ब है इसका पढ़ना, लेकिन पढ़ना में क्या लगा हुआ है, गा, है ना, पढ़ूंगा। इस तरह से जो सिंपल फ्यूचर वाले जो अनसर्टेन सेंटेंस होते हैं उनका जो वर्ब पैटर्न रहता है उसमें सारे हिंदी क्रियाओं के अंत में गा गेगी लगा रहता है ना। अब चलिए, आपने अब तक यह सीखा कि हिंदी सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसे हम कैसे जानेंगे कि वह सिंपल फ्यूचर में ही लिखा गया है। आपने क्या देखा कि यदि सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में लिखा गया है तो उसकी जो क्रियाएं होंगी उसके अंत में गा गे गी लगा रहेगा, है ना। और सेंटेंस में ऐसे एक्शन के बारे में कहा जाएगा, अर्थात कि सेंटेंस में किसी काम के होने के बारे में कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि आप यह निश्चित पूर्वक नहीं कह सकते कि वह काम आने वाले समय में होगा ही। अब नाउ सपोज फॉर टाइम बीइंग कि यू डोंट नो हिंदी, ओके, एंड you come across a sentence of English and you have to come to know whether the sentence has been written using the grammatical rules of simple future or not. Then how will you come to know it? It is not very difficult. Now see here, how will you come to know that the English sentence you are reading or before you belongs to simple future tense? Just pay attention to the use of the verb pattern there. There must be shall or will, and shall or will must follow root verb one form. For example, will go, shall read, will sleep, shall come this way. ओके, सो अब सपोज कि आई टेल कि आई शैल नॉट गो देयर, व्हाट यू नोट इन दिस सेंटेंस, आई हैव यूज्ड शैल नॉट गो, शैल प्लस गो, शैल प्लस V1, क्लियरली दिस इंग्लिश सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ हाउ टू फॉर्म sentences of simple future tense in English. Here are the structures. The positive structures is like this. First of all, you will write subject, thereafter shall, will plus the root verb one. For negative structure, you have to use subject plus shall, will plus not plus root verb one. For simple interrogative structure, you will use shall or will, one out of the two, plus subject. If the sentence is further negative, you will add
not after subject and plus root verb 1. And for double interrogative structure, you will first of all you will write WH word, thereafter shall or will plus subject, and to make it negative you will add not after subject, and thereafter the first form of the verb will be added. And this way the structure follow. Now note one thing, आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सेल किस सब्जेक्ट के साथ सेल लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। हो सकता है आप इसके बारे में पहले से जानते हो, लेकिन आप एक बार फिर जान लीजिए कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तब उसके साथ हम सेल लगाएंगे। अब आप जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है वह दो है, एक आई जो कि सिंगुलर माना जाता है और दूसरा है वी जो कि इंग्लिश ग्रामर के रूल के अनुसार प्लूरल माना जाता है। तो आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में है तब, और सेकंड और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होंगे जैसे कि यू, सी, ही, और यदि कोई नाम हो राम, सीता, श्याम, है ना, हवा, पानी, दुनिया, मिट्टी, है ना, इन सभी सब्जेक्टों के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, भले ही उनका नंबर और जो कुछ भी हो। जैसे आप जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, फिर भी उसके साथ हम विल लगाएंगे। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, फिर भी उसके साथ हम विल लगाएंगे। ही, सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, उसके साथ हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे। अब ऊपर जो हिंदी के सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल में लिखे थे उस स्ट्रक्चर के अनुसार उसको बनाते हैं। तो आप देखिए पहला सेंटेंस था वहाँ कि मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। नाउ द सब्जेक्ट इज मैं इन हिंदी, ठीक है, विच इज आई, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, देन आई शैल रीड दिस बुक टुडे, subject plus shall plus V1. The next sentence is वह तुम्हें नहीं बुलाएगी, it is negative. Now the subject is she, third person, singular number, we will use will. So she will not call you, she plus will plus to make it negative, we have used not after auxiliary will, then first form of the main verb which is called, thereafter the object form you. Now the sentence becomes she will not call you. The third one is simple interrogative, क्या आज पुजारी मंदिर में घंटी नहीं बजाएगा। The subject is पुजारी, priest, third person, singular number. Then since it is of simple interrogative type sentence, so auxiliary shall or will be used first. The subject is third person singular number, so we have to use here will. So will plus subject to make it negative, not V1, and the rest term of the sentence. So the sentence becomes will the priest not ring the bell in the temple today. Then fourth sentence is श्याम यहाँ दोबारा कभी क्यों नहीं आएगा. It is of WH sentence. So first of all we have to write the WH word. The WH word is क्यों. For English it will be why. Thereafter shall or will, since the subject is Syam, third person singular number, so after WH we will use will. Thereafter the subject. फिर कभी नहीं, ठीक है, for this term कभी नहीं, never, and main verb one. Thereafter here again. So why will Syam never come here again? Okay, so my dear students, these all four sentences refers to uncertain future. Now come to the certain future. What is the difference between certain future and uncertain future? The difference is created only
because of the use of Hindi words. Note here, the first one here you read and translated, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा. But now read here, मैं आज यह पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा. Now second is, वह तुम्हें निश्चय ही नहीं बुलाएगी, क्या वे लोग परीक्षा में जरूर पास होंगे. आप क्या देखते हैं कि आप इन तीनों ही सेंटेंस में हिंदी के वर्ड जुड़े हुए हैं, अवश्य, निश्चय ही और जरूर. ये जो हिंदी के सेंटेंस हैं, यह सेंटेंस को सर्टेन बनाते हैं, सर्टेनिटी प्रदान करते हैं. इसीलिए ये जो फ्यूचर सेंटेंस हैं, यह भी सिंपल फ्यूचर के ही हैं, क्योंकि आप देखिए इनकी भी जो क्रियाएं हैं उनमें गा गेग ही लगा है. ओके, लेकिन इनमें क्योंकि अवश्य, निश्चय ही, जरूर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इससे यह पता चलता है कि इन वाक्यों में जिन कार्यों के बारे में कहा जा रहा है वह आने वाले समय में जरूर ही होगा. अब इसको हम बनाएंगे कैसे. ठीक है, हमने यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दिया है, द एबव हिंदी सेंटेंस आर ऑफ सिंपल फ्यूचर बट द सेंटेंस हैव वर्ड्स लाइक अवश्य, निश्चय ही, जरूर. दिस सजेस्ट दैट द वर्क्स ऑफ रीडिंग बुक, कॉलिंग एंड पासिंग इन द एग्जामिनेशन आर श्योर टू हैपन इन फ्यूचर. अर्थात कि ये जो ऊपर में जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है अवश्य, निश्चय ही, जरूर. इससे ये पता चलता है कि इनमें जो काम होने के बारे में कहा जा रहा है, जैसे पुस्तक पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है, बुलाने के बारे में कहा जा रहा है, परीक्षा में पास करने के बारे में कहा जा रहा है, वह फ्यूचर समय में जरूर घटित होगा. अब इसको हम बनाएंगे कैसे. इसको बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस सिर्फ एक काम करना है. वह क्या कि टू एक्सप्रेस श्योरिटी इन फ्यूचर यू हैव टू इंटरचेंज द यूज ऑफ शैल विल अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट्स लाइक द वे सजेस्टेड बिलो. अर्थात कि आपको शैल विल के यूज में थोड़ा को इंटरचेंज कर देना है. कैसे कि अनसर्टेन फ्यूचर में आप फर्स्ट पर्सन के साथ, मैंने आपको कहा शैल लगाइएगा, मैंने आपको कहा था कि आई और वी के साथ शैल लगाइएगा. क्यों? क्योंकि वह अनसर्टेन फ्यूचर था. जब यही फ्यूचर सर्टेन हो जाए तब आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाएंगे और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाएंगे. जैसे यहाँ देखिए कि मैं आज यह पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर है. अगर यही सेंटेंस अनसर्टेन होता तो आई शैल रीड दिस बुक होता है ना, आई शैल रीड दिस बुक टुडे, आप यह लिखते. लेकिन इसमें अवश्य लगा हुआ है तो आपको शैल की जगह विल लगा देना है, आई विल रीड दिस बुक टुडे. अब इतना ही लिख देने से यह पता चल जाता है कि यह किताब पढ़ने का जो काम है वह आज अवश्य किया जाएगा. ठीक है, कभी कभी बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि आई विल रीड दिस बुक टुडे सर्टेनली, आई विल सर्टेनली रीड दिस बुक टुडे. ठीक है, आप सर्टेनली शब्द का इस्तेमाल करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यह विल ही यह पता ये करने में सहायता कर देता है कि यह सर्टेन फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है. ऐसे वर्तमान जो अभी ये अंग्रेजी लिखने की जो एक परंपरा है उसमें इसका हार्ड एंड फास्ट ये पालन नहीं किया जाता. लोग आई विल सर्टेनली रीड दिस बुक ऐसे भी लिख डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं आपको ग्रामेटिकली समझा रहा हूँ कि आप इम्फेटिक वर्ड, आप ऐसे वर्ड जो कि घटना को घटित होने के बारे में श्योर करते हैं, आप उनका प्रयोग करें ना करें, सिर्फ विल और शैल के पोजीशन को, यूज को इंटरचेंज कर देने से ही जो फ्यूचर है वह सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी शो करने लगता है. यहाँ देखिए, वह तुम्हें निश्चय ही नहीं बुलाएगी, शी शैल नॉट कॉल यू, यू डोंट नीड टू राइट शी शैल डेफिनेटली नॉट कॉल यू. And only this, the use of shall makes the action certain. क्या वे लोग परीक्षा में जरूर पास होंगे. यहाँ जरूर शब्द ये इसको निश्चित
ये इसको सर्टेन बनाता है। तो शैल दे पास इन द एग्जामिनेशन, अगर यही सेंटेंस अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में होता तो आप यहाँ पे दे के साथ विल लगाते। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होइएगा। अब आपकी समझदारी को टेस्ट करने के लिए आप खुद ही टेस्ट कीजिए कि आपने इसे कितना समझा। मैंने यहाँ पे नीचे 2 एक्सरसाइज आपके लिए क्रिएट किया है। एक में आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसे बनाकर, और नीचे आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है ना। आप इसे अपने घर पे ट्रांसलेट कीजिएगा और बनाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करने से आप इसके बारे में बिल्कुल विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप सीख पाएंगे, और आने वाले समय में जब आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर वाले सेंटेंस को लिखने में आपसे भूल नहीं होगी। So my dear students, I sincerely hope that you have gained from this video. If I am right, please let me know about reaction. Write in the comment sections your reaction about this video so that I may get what you think about it. Your reactions are very important for me because I get information regarding what type of video I should make for you and how should I do my work. तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।